Hello, hello, hello. Please do reply if I'm audible or not. Hello. Okay, so welcome to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to start the numericals, okay, or PYQs of income determination and multiplier, okay. So these are the PYQs, and I'm going to provide you the solutions also, okay. So let's start here. So, for example, the question is. So the question I'm going to write here and then the solution I'm going to provide. For example, in an economy, investment increased by 1000. Now you know you have to just concentrate on the language also, and whatever is been given you have to just write down first, and then whatever is asked you have to mention that also. तो ताकि आप कोई भी एक भी चीज़ जो है मिस ना करें, okay? But before I start the question, please type new if you are new viewers, okay? And tell me how you feel while doing the calculations or while doing the solutions or questions or numericals with me. Okay, so just tell me in the comment section also. So let's start here. Question: investment increases. So given investment increases, so delta I. Okay, now always mention rupees 1000, whatever is there, but you have to mention rupees and crores or lakh, whatever is given in the question. Okay, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, राइट? एंड गिवन इंफॉर्मेशन में है MPS इज इक्वल्स टू 0.25. ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट investment multiplier, that is K. Okay, and just wait here. Hmm. So you need to calculate the multiplier, and second is what they are asking to find out, change in income. So when MPS is given, you can easily find out multiplier. Okay, we know the formula.
first k we are going to find out. Okay, so k is equals to, that is multiplier is equals to 1 upon mps. Now 1 upon 0.25. Okay, so how much you will get here? You will get 4. So 4 is the value of multiplier. Okay, so you have got the value of 1, that is multiplier. Second, they are asking here to find out delta y. Now how you are going to calculate delta y? We know the formula, that is multiplier is equals to, इसका दूसरा ये था ना, delta y upon delta I. We know the value of multiplier here. 4 is equals to delta y is what? Delta y हमें calculate करना है. So we'll write here delta y here. Then delta I is already given 1000. So you are going to write here delta y is equals to, cross multiply कर देंगे, 4 into 1000. So delta y is equals to rupees 4000 crore. Got it here? Now what you will do, you will mention the answer also. मैं एक ही पेज पे सामने आपके क्वेश्चन कर रही हूँ, इसलिए मैं नीचे इसको कहीं से स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, बट यू विल मेंशन द आंसर्स. ओके, जब ये पूरा आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, देन इन द नेक्स्ट लाइन. ओके, लीव 2 lines and then you can answer. Okay, now answer is k is equals to 4 and delta y is equals to rupees 4000 crore. So this is your answer. Okay, यहाँ पे आप okay, please do take the screenshot. Okay, if this kind of question comes, then you're going to answer like this. Now next question, what I'm going to do here, let me rub this and tell me in the comment section कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई. जब भी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि मल्टीप्लायर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में के 3 फॉर्मूलाज हैं. अगर एमपीसी गिवन है तो के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी करते हैं हम. ठीक है, ये सब थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. और अगर आपका के का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको पूछा जा रहा है एंड एमपीएस इज गिवन, तो हमने जैसे अभी किया था के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस. ओके, और अगर थर्ड क्वेश्चन अगर आपका आता है रिलेटेड टू चेंज इन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, तो आप चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कर देंगे. राइट, नाउ लेट्स डू द अदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कह सकते हैं इसमें, दैट इज यू नीड टू कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कैलकुलेट इसमें हमें करना है consumption expenditure and second is what, investment expenditure. Investment expenditure. Okay, for the economy now what is given, equilibrium level of income is given. ठीक है, given है आपका equilibrium level of income is what, 5000. Okay, then autonomous consumption, so we can write it like this, autonomous consumption is rupees 500 crores and MPS is given. It's given 0.4. Okay, now you need to find out consumption expenditure. तो देखो, जब पहले MPS is given है और आपको consumption expenditure करना है, तो first what I am going to do, first step हमारा होगा, हमें calculate करना होगा MPC. Okay, तो MPC is equals to 1 minus MPS. MPS आपको given है 0.4, तो 1 minus 0.4 is equals to 0.6. बिकॉज हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना हो. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का क्या होता है, अब आप सेकेंड वाला स्टेप करेंगे. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई. बी का मतलब होता है यहाँ पे MPC. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट व्हाट, वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज.
तो सी का क्या हो जाएगा? सी बार आपको गिवन था, राइट, 500 प्लस बी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.6, ठीक है। और आपका जो इनकम है वो गिवन है 5000, सो यू विल गेट हियर 500 plus 3000 is equals to rupees 3500 crore. So this is your consumption expenditure. Now third point आपका क्या था, इसमें बोल रहे थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है. So for investment expenditure, we know national income is equals to C plus I. Now we have the value of national income 5000 already given in the question. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, राइट. Equilibrium level of income 5000. Now we know the value of C, that is consumption expenditure, is 3500 plus I मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने I एज इट इज लिया. नाउ वैल्यूज को एक तरफ कर लिए. I is equals to 5000 minus 3500. So investment expenditure would be 1500 crores. Okay. I hope you are understanding how we are going to how you're going to solve this question. Okay. And if this helps you, then please do like, share, and subscribe. Okay. So in this way, we are going to calculate as whatever the information is given. कोई भी information आपको given है या क्या find out करना है, उसके according आपको ये formulas put करने हैं, ठीक है. और ये सब PYQs हैं, previous year questions, ठीक है. इसीलिए मैं आपको ये last में करा रही हूँ ताकि आपकी भी practice हो जाए. Okay. So let's do the other question also. आंसर प्लीज आप अलग से मेंशन करिएगा, ठीक है. लेट मी रब इट. ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स में भी मिल सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है. और कहीं कहीं पे आपको खाली एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो 2 मार्क्स आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी हियर. लेट मी सी. ओके, गिवन डेटा है, फॉर एग्जांपल planned investment is equals to rupees 100 crores. ओके, ये गिवन है आपको, ठीक है. देन कंजम्पशन फंक्शन का क्या है आपका, गिवन है 50 प्लस 0.50 y. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. Equilibrium level of income you need to find out. Then value of saving. क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसके पार्ट्स बहुत होते हैं, राइट. सेविंग्स एट equilibrium level of national income. Oh, very sorry. Again, some problem occurred. I don't know what happens here. Then C.
Not again. I don't know what's happening here. ये पेंसिल मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें. लास्ट टाइम भी ऐसे ही दिक्कत आई थी. सॉरी, आई हैव टू वाइंड अप हियर. ये पेंसिल्स में सेलेक्ट नहीं हो रही है मुझसे. आई डोंट हैव सो मच ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू दिस.
Okay, so sorry for the inconvenience. Okay, so what we were doing the question here, um that was hmm, planned investment was given. Okay, I hope we are doing this question right. Hmm. So question was, sorry for, really sorry आपका टाइम उसमें गया. Planned investment rupees 100 crores. Again, I'm writing the question. Okay, and consumption function is given 50. 50 plus 0.50 y. Now you have to determine what? That is equilibrium level of income. Equilibrium level of income. And second, you have to calculate the value of savings at equilibrium level of national income. And last, you need to calculate the value of K or investment multiplier. Okay, fine. Now I'm going to start the solution. Okay, you can also try it by yourself. Now here, given the consumption function is C is equals to 50 plus 0.050. It is given here. So we know that what. So we are just going to write C is equals to, पहला मैं calculate करती हूँ equilibrium level of income. Okay. So C is equals to 50 plus 0.50 y. This is your equation. ठीक है. अब हम क्या करेंगे इसमें? We know that AD is equals to AS is equals to y is equals to c plus I. This is the equilibrium. Now we are going to put the value. Put the values, that is y is equals to कितना हो जाएगा 50 plus 0.50 y और I का क्या है, that is 100. Okay, is equals to, क्या करेंगे हम, 100 plus 50, ये आ गया 150 plus 0.50 y. Okay, now put both y together. इनको एक साथ कर लेंगे तो y is equals to 0.50 y is equals to 150. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई. Now y is equals to how much? 150 upon 0.50. So you will get rupees 300 crores. So this is your income, right? Equilibrium level of income. Now we know, need to calculate the value of savings. Okay, तो second आपका हो जाएगा value of savings is equals to S is equals to, यानी कि सेविंग कैसे कैलकुलेट करें, इनकम में से अगर हम माइनस कर देंगे कंजम्पशन, वी नो द वैल्यू ऑफ इनकम. ठीक है, जो इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज सेविंग. ओके, तो मुझे पता है y is equals to 300. ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन की क्या है, ये इक्वेशन थी 50 प्लस 0.50 इंटू वाई. अब y की मुझे वैल्यू पुट कर देंगे 300. सो यू विल गेट 50 प्लस कितना हो जाएगा ये 150 इज इक्वल्स टू 200. तो ये आपका कंजम्पशन आ गया. नाउ सेविंग इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा था इनकम माइनस कंजम्पशन. तो इनकम कितनी थी 300 थी, कंजम्पशन कितना कैलकुलेट हुआ 200. तो सेविंग विल बी, जस्ट वेट,
सेविंग कितना हो जाएगा, ₹100 करोड़। गॉट इट हियर। अब मुझसे लास्ट में पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के। तो वी नो द वैल्यू ऑफ व्हाट, एमपीसी। एमपीसी का वैल्यू है तो हम पहले लिख देंगे फॉर्मूला 1 माइनस MPC, 1 upon 1 minus MPC. 1 upon 1 minus, you will write the value of MPC and you will get 1 upon 0.50 is equals to 2. Okay. I hope now it's quite clear now. ठीक है, तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ लेट मी जस्ट रब दैट। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में, एग्जाम्स में, तो इनको प्लीज़ आप नेग्लेक्ट ना करिएगा, इनकी प्रैक्टिस इस तरह की ज़रूर करिएगा। ओके, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है और इसमें क्या होता है, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। ओके, सो डू प्रैक्टिस इट and tell me in the comment, are you able to understand it or not? Let me rub the whole thing. Okay, the next question we are going to solve. For example, here the saving function is given now. Saving is equals to हमेशा माइनस में आता है, okay, plus 0.10 y, okay, and if the x ain't investments, तो given है x ain't investments is equals to rupees 450 crores. Now calculate the following. पहले हमें करना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड में आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करना है, नीडेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, प्लीज मेरी राइटिंग को बेयर करिएगा, ओके। नीडेड टू गेन एन एडिशनल, एडिशनल का मतलब डेल्टा हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका डेल्टा आई है, ये समझ जाइएगा लैंग्वेज, ठीक है। दिस इज डेल्टा आई एंड दिस इज डेल्टा वाई। कितना गिवन है, ₹3000 करोड़। ओके, तो ये हमें इंफॉर्मेशन है, सेविंग यहाँ पे गिवन है, राइट। यहाँ पे कंजम्पशन नहीं है, सेविंग गिवन है, तो हमको ये ध्यान रखना है इस चीज का। नाउ उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे गिवन है, सोल्यूशन में गिवन है सेविंग इज इक्वल्स टू -50 प्लस 0.10 y, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, वहां पे जहां पे s इज इक्वल्स टू आई, याद है ना, AD इज इक्वल्स टू AS है और दूसरी अप्रोच क्या है, s इज इक्वल्स टू आई, ओके। Then now we are going to put the values of S and I given above. So values कितना है, -50 plus 0.10 y is equals to s upon s is equals to I, तो सेविंग तो हमने पूरी इक्वेशन लिख दी। अब I में क्या है, that is 450, ये गिवन है ना 450, ठीक है। ये पूरी हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, इज इक्वल्स टू, नाउ वैल्यूज को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 450 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0.10 y। इसी तरह आपको ये सॉल्व करना है, राइट। देन
450 plus 50, you will get 500 is equals to 0.10y. Then y कितना हो जाएगा आपका 500 divided by 0.10. So you will get rupees 5000 करोड़. ठीक है, ये तो पहले का आपका आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का. फर्स्ट वाला आपका मिला है आपको. ठीक है आंसर. ना सेकंड में क्या पूछ रहे हैं ये, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू गेन एन एडिशनल इनकम एट ₹3000. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे इसमें, वी नो k इज इक्वल्स टू 1/MPS. MPS क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेविंग गिवन है. ओके, तो मल्टीप्लायर आपका है 1/0.10. तो ये आपका आ गया मल्टीप्लायर. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एडिशनल पूछ रहे हैं ना, तो इसका थर्ड फॉर्मूला हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का. k इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ k इज 10. ये 10 हमने कैलकुलेट किया था. इज इक्वल्स टू डेल्टा y आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, शुरू में देखिए जहाँ पे ये आपका लिखा गया था स्टेटमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू गेन एडिशनल इनकम, तो एडिशनल इनकम का यहाँ पे अमाउंट लिखोगे. ठीक है, ओके, एडिशनल इनकम का लिखेंगे, ये वाली इनकम नहीं लिखेंगे. एडिशनल इनकम अपॉन डेल्टा आई. पूछ रहे कितना इन्वेस्टमेंट नीडेड है, राइट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्रॉस नहीं सॉरी ये आ जाएगा डेल्टा आई इज इक्वल्स टू अपॉन कर देंगे 3000 अपॉन 10. सो डेल्टा आई इज इक्वल्स टू रुपीज 300 करोड़. क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे. ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐसे आ रहा है. ठीक है, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3000 अपॉन 10 आ जाएगा, राइट. सो इन दिस वे यू कैन इजीली गेट टू नो इफ सेविंग फंक्शन इज गिवन. उसमें बताया गया इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, तो ऐसा ही अप्रोच हमने लगाई. देन मल्टीप्लायर कैलकुलेट करा एमपीएस से, तो फिर एमपीएस के बाद जब हमें पता चला कि चेंज इन इनकम हमें पता करना है या चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो हमने दूसरा वाला उसका फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट करके लगा दिया, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, राइट. बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेली रिविजन इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, राइट. इट लव इट. And tell me how you are feeling. The questions are easy, difficult, what's the level of the question. आप ये कर पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, राइट. एंड प्लीज डू वॉच द स्कोर बूस्टर सीरीज. उसमें मैंने चैप्टर वाइज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर, उसके भी मैंने उसका सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया है. ठीक है, 3 to 4 मार्क्स हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये भी मैंने मेंशन आपको इसमें स्कोर बूस्टर सीरीज में प्रोवाइड करें. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन we can do here. Okay, again here, for example, if a saving function in economy is given, देखो सेविंग फंक्शन कहीं पे भी होगा तो वो माइनस में होगा पहले. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना. अगर इसको कंजम्पशन फंक्शन में करेंगे तो माइनस हटा देंगे, बस वो कंजम्पशन में हो जाएगा. ठीक है, प्लस 0.25y. ना इफ द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 2000 करोड़. ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन है आपकी. देन कैलकुलेट द फॉलोइंग. अगेन आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देन सेकंड आपको क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड एट इनकम. देखो इनकम गिवन है. ठीक है, तो हम इनकम कितनी गिवन है एट ₹5000 करोड़. ओके,
अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी हियर। नाउ वी नो फर्स्ट सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताया गया ना, तो पहले हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। तो ए का पहले आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू एस प्लस आई, एस इज इक्वल्स टू आई, सॉरी, ठीक है, यही तो होता है ना, जहाँ पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, एस इज इक्वल्स टू आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वी विल जस्ट राइट द इक्वेशन, द होल इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू माइनस 250 प्लस 0.25 वाई, एज इट इज इसको कॉपी कर देना, ऐसे ही स्टेप वाइज आपको करना है। ये तो एस की इक्वेशन हो गई पूरा, इक्वल्स टू आई, आई कितना है, प्लान इन्वेस्टमेंट है 2000। ओके, ऐसे ही स्टेप वाइज आपको करना है फॉलो। नाउ वाई को एक तरफ कर लो, 0.25 वाई इज इक्वल्स टू 2000, ये माइनस का था, इधर आ गया, ये हो गया प्लस। ओके, बस ऐसे ही स्टेप वाइज करते चले जाना। 0.25 वाई इज इक्वल्स टू 2250। ओके, नाउ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2250 इज इक्वल्स टू 0.25, so you will get rupees 9000 करोड़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया, एडी पूछ रहे हैं, राइट। तो हम एडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडी क्या है, एट इनकम ऑफ, इनकम कितनी बता रहे हैं, ₹5000 करोड़। नाउ एडी तो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। नाउ या हम कह सकते हैं एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। नाउ जो आपके सेविंग ये आपकी इक्वेशन गिवन है ना, इसी से हम एडी का, यस, कंजम्पशन फंक्शन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वी नो, अब ये देखो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वी नो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये माइनस का 250 है, इसको हम सिंपल 250 लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, बस माइनस हटाना है। बी कितना है, देखो 0.25 एमपीएस होता है ना सेविंग में, तो हम इसको क्या करेंगे, 0.75 कर देंगे, या हम कह सकते हैं 1 माइनस एमपीएस, एमपीसी इज इक्वल्स टू, ये हम अलग से लिख रहे हैं, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना हम सीधे सीधे सिंपल भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन, राइट, कंजम्पशन फंक्शन की। नाउ व्हाट यू विल डू, वाई आपको देखो गिवन है, यहाँ पे हम y का नेक्स्ट उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.75, देखो तो यार लेवल ऑफ 5000 है ना, एट इनकम ऑफ लेवल ऑफ 5000 हमें एडी फाइंड आउट करना था, तो इनटू कर देंगे हम 5000, सो यू विल गेट हाउ मच, 250 प्लस 3750 इज इक्वल्स टू रुपीज 4000 करोड़। ओके, इतना समझ में आ गया सबको, ये कंजम्पशन हमारा कैलकुलेट होके निकला है, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग हियर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। तो एडी कितना आया आपका 4000, प्लस इन्वेस्टमेंट आपका कितना था 2000, ठीक है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट बताया गया था ना, प्लान इन्वेस्टमेंट 2000, सो यू विल गेट रुपीज 6000 करोड़, ठीक है। यहाँ तक आपका ये कंजम्पशन निकला है। कंजम्पशन हमने कैलकुलेट कर लिया, जो सेविंग था उसको माइनस का खाली साइन हटाया, और एमपीएस की जगह पे हमने वो माइनस करके लिखा 1 माइनस एमपीएस, तो हमें मिल गया एमपीसी, ठीक है। ये उनको उनके लिए बता रही हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो करते आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको तो समझ में आ रहा होगा। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, इस तरह के एग्जाम्स में आपके आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, and please do like, share and subscribe so you won't miss
other life, or you can say the other questions also. The solutions I'm going to provide. Okay, let me rub this. ये सब थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे तो मुझे कराना ज़रूरी है. ओके, एंड प्लीज़ डू वॉच द स्कोर बूस्टर सीरीज ऑल्सो. उसमें हर चैप्टर के, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैंने क्वेश्चंस PYQs विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं, चाहे वो थे. डोंट मिस दैट ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर द अदर क्वेश्चन. ओके, नाउ द अदर क्वेश्चन इज कंजम्पशन फंक्शन गिवन है आपको. कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y. अब देखो कंजम्पशन फंक्शन का होता क्या है, सी बार. ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब 100 है, ठीक है. ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ स्टूडेंट्स को. 0.75 का मतलब क्या है, ये MPC है. Wait. ये क्या है, ये MPC है. और y हमेशा मल्टीप्लाई होता है, दैट इज इनकम. तो इनकम यहाँ पे देखो नहीं गिवन है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट हियर. बी पार्ट में ये तो गिवन है, ठीक है. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिवन है. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज 150 crores. ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट. ये सब गिवन इंफॉर्मेशन थी. अब आपको असली चीज पता क्या करनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, फिर आपको सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. कंजम्पशन और सेविंग्स आपको पता करना है. सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ओके, अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, लेट्स सी. पहले तो हमें क्या किया है, गिवन है कंजम्पशन और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये सब गिवन है. लेट मी चेंज द कलर सो यू शुड नो वेयर इज योर आंसर. ओके, तो गिवन आपका ये हो गया, C इज इक्वल्स टू 100, यानी कि ये हो गया ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस 0.75y. पहले हमने एज इट इज इसको ऐसे ही इक्वेशन को लिख लिया. नाउ वी नो AD इज इक्वल्स टू AS. ओके, यही तो आपका इक्विलिब्रियम होता है. A टू AS इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे तो y इज इक्वल्स टू C प्लस I. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन. जो जो वैल्यूज आपके पास है, पुट वैल्यूज. तो y इज इक्वल्स टू C प्लस I. ये आपका गिवन है. C कितना है आपका, 100 प्लस 0.75 y. y को तो अभी हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं ना. और इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है 150. इतना क्लियर हो गया सबको. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक तरफ इसका नंबर्स को कर लो. तो 100 प्लस 150, ये आपके आ गया 250 प्लस 0.75 y. ओके, नाउ इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब y इज इक्वल्स टू 250 अपॉन, देखो अब यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिस कर दिया. लेट मी जस्ट राइट इट. ऐसे लिख दूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करें, y 0.75y इज इक्वल्स टू 250. अब जब यहाँ पे लेते हैं तो हमेशा इसको 1 माइनस जो भी नंबर यहाँ पे आता है इसको करके ऐसे लिखते हैं 0.25y. कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा इसको हम 1 से माइनस कर देंगे, ये इसका स्टेप है, ठीक है. सो इज इक्वल्स टू 250. नाउ y इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 0.25. तो ये इस तरह आपका आ जाएगा आंसर
रुपीज 1000 करोड़। ओके, तो ये आपका कंजम्पशन कितना आया, नहीं इनकम आपका आया 1000। ठीक है, सेकंड क्या है, आपको कंजम्पशन फाइंड आउट करना था। सो वी नो सी बार प्लस बी बार दैट इज एमपीसी इंटू वाई। तो कंजम्पशन का ऊपर गिवन ही था 100 प्लस 0.75 और वाई मेरे पास आ ही गया है, 1000 हमने कैलकुलेट कर लिया है। So we will just write it like this, 100 plus 750 is equals to rupees 850 करोड़। तो ये आपका आ गया कंजम्पशन, राइट। अब इसी से हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला ना कंजम्पशन एंड सेविंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये आपका इनकम भी आ गया था, कंजम्पशन भी आ गया। अब सेविंग कैसे होगा, सेविंग इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम में से जब हम कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो आपका इनकम कितना था 1000, ये रहा। कंजम्पशन कितना है 850। ठीक है, इसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका आ गया सेविंग। ओके, द होल क्वेश्चन वी हैव डन। फाइन, let me rub it and then we are going to do few more questions. देखिए इस तरह के भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कहने को वो सिर्फ 2 लाइन के होते हैं बट आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर्मूलाज वही सब पुराने चलेंगे बट स्टिल प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। है इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। ठीक है, तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब फ़ौरन आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्या कैलकुलेट करना है, राइट। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है टू स्कोर फुल इन इकोनॉमिक्स, राइट। और मैं इसीलिए स्टेप वाइज हर चीज़ आपको बता रही हूँ, लिख के भी बता रही हूँ। कोई भी मैं शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए, वेदर इट्स अ न्यू स्टूडेंट और एन ओल्ड स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, for example, an economy is in equilibrium. Its national is rupees 5000. Okay. So economy में क्या है, national income आपका given है, national income is given rupees 5000 and autonomous मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, autonomous consumption is rupees 500. This is rupees, okay. And what is the total consumption expenditure? ठीक है, so they are asking here total consumption expenditure. Total consumption expenditure they are asking when MPC is 0.7. ठीक है, now let's find out here. We know solution पहले मैं लिख देती हूँ। AD is equals to AS, okay, and Y is equals to C plus I, okay. तो AD is equals to what, aggregate demand is equals to C bar plus BY। ठीक है, अब यहाँ पे C बार कितना, ऑटोनमस कंजम्पशन गिवन है 500 प्लस आपका MPC गिवन है 0.7। ठीक है, इनटू इनकम कितनी है 5000। सब चीज़ें ऑलमोस्ट गिवन है। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दैट 500 plus 0.7 into 5000, so you will get 3500. So you will get here amount rupees 4000 crores. Okay, so this is your expenditure, consumption expenditure, right? Got it here? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे हमने कैलकुलेट करा, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब चीजें गिवन थी, बस हमने उसको वैल्यूज को पुट करा फॉर्मूला में एंड देन वी गेट टू नो
the value of consumption expenditure. These are all previous year questions. Please go through it. Please just practice this, okay, and go through it. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको प्लीज मिस ना करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this life. Okay, uh, let us do find investment from the following. Now आपको investment find out करना है. Okay, when national income is given rupees 500, okay, and autonomous consumption is given 100, okay, and MPC, marginal propensity to consume, is 0.75. Okay, now how you're going to calculate, tell me here. So we know the equation that C is equals to C bar plus BY. तो C bar देखिए given है 100, autonomous consumption B आपका है 0.75, ठीक है, और इनकम भी आपकी गिवन है 500, ठीक है, इतना आपने कर लिया. नाउ वी नो, ये तो आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है. जस्ट वेट, नेशनल इनकम अभी नहीं लिखो उसको, नेशनल इनकम अभी हम पहले इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है ना, तो उसके साथ करेंगे. So we just write here 0.75y. Okay. Now we use national income में क्या टू सेक्टर मॉडल चल रहा है, ठीक है. So in two sector model y is equals to c plus I. Now put the values. c कितना है 100 plus 0.75 y plus I, ठीक है. Bring the like terms together. तो y आपका आ गया, तो y minus 0.75 is equals to 100 plus I, राइट. तो अब 1 माइनस 0.75 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 is equals to 100 plus I. Now put the value of y given in the question. ये कितना था 0.25 इंटू आपका 500 गिवन था इज इक्वल्स टू 100 प्लस आई, ठीक है. तो ये आपका आ गया 125 इज इक्वल्स टू 100 प्लस आई. तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट को एक तरफ कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो, ठीक है. तो 125 माइनस 100, सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू रुपीज 25 crores. Okay, hope you understand it. And type done if you understood today's session, and type next if you want next score booster live. Okay, so revise today's topic once again. See you in next live. Keep studying and score well. Thank you so much, and please do like, share and subscribe. Thank you.